آج ہم ترکی کے گاؤں کی زندگی کے بارے میں جانیں گے، دیکھیں گے یہاں کے لوگوں کا رہن سہن، جانیں گے یہاں کی کھیتی باڑی کے بارے میں، اور ساتھ ہی ویڈیو کے دوسرے حصے میں بات کریں گے یہاں پر رہنے والی کچھ مفوق الفطرت مخلوق کے بارے میں۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ترکی کے کچھ حصے یورپ اور ایشیا دونوں میں 8 ممالک اور 3 سمندروں سے متصل ہیں۔ ترکی کے دیہات کا منظر ساحلی میدانوں سے لے کر ناہموار پہاڑوں، سرسبز وادیوں اور زرخیز سطح تک مختلف ہوتا ہے۔ ترکی کے گاؤں بہت ہی خوبصورت اور دلکش ہوتے ہیں، اسی لیے ترکی کے دیہاتوں میں سیاحت کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دیہاتی روایتی گاؤں کی زندگی کا تجربہ کرنے میں دلچسپی رکھنے والے مہمانوں کو ہوم سٹے، فارم ٹورز اور ثقافتی تجربات پیش کرتے ہیں۔ خاص کر اوٹمن گاؤں جو اوٹمن امپائر سے خاصا متاثر ہے۔ یہاں کے خوبصورت پتھر کے گھر اور گلیاں اور یہاں کی خوبصورت ثقافت، یہاں کی ثقافت کو سمجھنے کے لیے آپ کو اوٹمن امپائر کے دور میں لے چلتے ہیں۔ جب اوٹمن ترکوں کے پاس کوئی مہمان آتا تو وہ اس کے سامنے قہوہ اور سادہ پانی پیش کرتے۔ اگر مہمان پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا، وہ سمجھ جاتے کہ مہمان کو کھانے کی طلب ہے، تو پھر وہ بہترین کھانے کا انتظام کرتے، اور اگر وہ قہوے کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ جان لیتے کہ مہمان کو کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ اور اگر کسی گھر کے باہر پیلے رنگ کے پھول رکھے نظر آتے تو اس کا مطلب ہوتا کہ اس گھر میں مریض موجود ہے، آپ اس مریض کی وجہ سے گھر کے باہر شور نہ کریں، اور عیادت کو بھی آ سکتے ہیں۔ اور اگر گھر کے باہر سرخ پھول رکھے ہوتے تو یہ اشارہ ہوتا کہ گھر میں بالغ لڑکی ہے، لہٰذا گھر کے آس پاس بازاری جملے نہ بولے جائیں، اور اگر پیغام نکاح لانا چاہتے ہیں تو خوش آمدید۔ گھر کے باہر 2 قسم کی ڈور بیل ہتھوڑے رکھے ہوتے، ایک بڑا اور ایک چھوٹا۔ اگر بڑا ہتھوڑا بجایا جاتا تو اشارہ ہوتا کہ گھر کے باہر مرد آیا ہے، لہٰذا گھر کے باہر مرد جاتا تھا، اور اگر چھوٹا ہتھوڑا بجاتے تو معلوم ہوتا کہ باہر خاتون موجود ہے، لہٰذا اس کے استقبال کے لیے گھر کی خاتون دروازہ کھولتی۔ اگر کسی عثمانی ترک کی عمر 63 سال سے بڑھ جاتی اور اس سے کوئی پوچھتا کہ آپ کی عمر کیا ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا و ادب کرتے ہوئے یہ نہ کہتا کہ میری عمر 63 سال ہے، بلکہ یہ کہتا بیٹا ہم حد سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ کیسا ادب، کیسا عشق تھا ان لوگوں کا، کیسی بہترین عادات تھی ان لوگوں کی۔ لیکن آج سب کچھ ویسا تو نہیں ہے، کیونکہ وقت بدلنے کے ساتھ بہت کچھ بھی بدلا ہے، لیکن آج بھی 80% سے زیادہ گھر اوٹمن امپائر کے دور کے ہی بنے ہیں۔ ترکی میں زراعت گاؤں کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، جہاں کاشتکار گندم، جو، کپاس، تمباکو، پھول، پھل اور سبزیاں سمیت مختلف فصلیں کاشت کرتے ہیں۔ مویشیوں کی فارمنگ بھی عام ہے، جس میں بھیڑ، بکری، مویشی اور مرغی کا گوشت، دودھ، اون اور انڈوں کے لیے پرورش کیے جاتے ہیں۔ زیتون کی کاشت بحیرہ ایجین اور بحیرہ روم جیسے خطوں میں وسیع پیمانے پر ہوتی ہے، اور ترکی زیتون کا تیل پیدا کرنے والے دنیا کے سرکردہ ممالک میں سے ایک ہے۔ ترکی کے دیہاتوں میں شہد کی مکھیاں پالنا ایک روایتی پیشہ ہے، جس میں شہد کی پیداوار آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ دیہاتوں میں زرعی کوآپریٹو ادارے ہوتے ہیں، جو چھوٹے کسانوں کی مدد کرنے، منڈیوں تک رسائی پہنچانے، قرضہ دینے اور تکنیکی مدد فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ترکی میں گاؤں کے مذہبی تہوار اکثر اسلامی روایات کے گرد ہی گھومتے ہیں، کیونکہ یہاں کی آبادی کی اکثریت مسلمان ہیں۔ رمضان اسلامی قمری کے لحاظ سے 9واں مہینہ ہے، اور اسے دنیا بھر کے مسلمان روزے اور دعا کے مہینے کے طور پر مناتے ہیں۔ اور ترکی کے دیہاتوں میں رمضان المبارک کو مساجد میں خصوصی دعائیں، افطار کے لیے رات کو روزہ افطار اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے خیراتی سرگرمیوں کے ذریعے منایا جاتا ہے۔ عید الفطر وہ تہوار ہے جو رمضان کے اختتام پر منایا جاتا ہے۔ یہ خوشی، شکر گزاری اور جشن کا وقت ہے۔ خاندان تحائف کے تبادلے، کھانے بانٹنے
और दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए जमा होते हैं। तुर्की के देहात रंग बिरंगी सजावट और बच्चों के खेलने की आवाज़ों से जिंदा हो जाते हैं। ईद उल अज़हा कुर्बानी का त्यौहार है जो हज़रत इब्राहीम के अपने बेटे को खुदा की फरमाबरदारी के तौर पर कुर्बान करने की रजामंदी की याद में मनाते हैं। इस त्यौहार के दौरान मुसलमान भेड़, बकरी या गाय जैसे जानवरों की कुर्बानी करते हैं और गोश्त खानदान, दोस्तों और मोहल्लेदारों में तकसीम करते हैं। गांव वाले नमाज अदा करने, खाना बांटने और खैराती कामों में मसरूफ़ रहते हैं। ईद मिलादुन नबी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का जश्न है। इस रात मुसलमान मसाजिद में खसूसी दुआओं, तलावत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और तालीमात की तारीफ़ करने और आपकी पैदाइश की खुशी में शरीक होने के लिए जमा होते हैं। देहातों में मिलाद इज्तिमात, रोशन मसाजिद और पड़ोसियों और आने वालों में मिठाइयाँ तकसीम करके मनाया जाता है। तुर्की के देहातों में दस्तकारी की जड़ें अक्सर सदियों पुराने तरीकों से जुड़ी होती हैं जो मुल्क के भरपूर सकाफती विरसे की अक्कासी करते हैं, जैसे कलीन और कलीम। तुर्की के कलीन और कलीम अपने पेचीदा डिज़ाइन, मुतहरिक रंगों और हुनरमंदी के कारीगरों के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। देहाती ख़ास तौर पर अनातोलिया जैसे इलाकों में नस्ल दर नस्ल गुजरी हुई रवायती तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए कलीन और कलीम बुनते रहते हैं। मिट्टी के बर्तन। देहाती अक्सर मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मुकामी तौर पर हासिल की गई मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। प्याले, प्लेटें, जग और आराइशी अशिया तैयार करते हैं जो तुर्की के हर इलाके में मिट्टी के बर्तनों का अपना मुनफरिद अंदाज है, जिसकी खसूसियत मुख्तलिफ डिज़ाइन और शक्लें हैं। लकड़ी का काम, जिसमें कारीगर तराश, जोड़ने और फर्नीचर बनाने में माहिर होते हैं। लकड़ी के नमूने जैसे चम्मच, प्याला और आराइशी अशिया को रवायती औजारों और तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया जाता है। तांबे और पित्तल का काम। तुर्की के देहातों में अपने तांबे और पित्तल के काम के लिए मशहूर हैं। कारीगर पेचीदा तरीकों से कुनद शुदा बर्तन, पैन, ट्रे और दीगर घरेलू अशिया तैयार करते हैं। ये अशिया अक्सर हाथों से, हथौड़ों और हिंदसी नमूनों में या फूलों की शक्लों से मुज़य्यन होती हैं। इसके अलावा तुर्की के देहातों में हाथ और मशीनों से बने हुए कंबल, शाल, अस्काफ और रवायती लिबास जैसे कमीज और शलवार शामिल हैं जो कपास, ऊन और रेशम जैसे कुदरती रेशे आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। तुर्की के देहातों में तालीम तक रसाई में बेहतरी आई है। बहुत से दही इलाकों में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल कायम हो रहे हैं। सेहत की खिदमात हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम सेहत के मराकज़ के ज़रिए फराहम की जाती है जो बुनियादी देखभाल, वैक्सीन्स और माँ और बच्चे की सेहत की खिदमत पेश करते हैं। तुर्की के बहुत से देहातों में सड़कें, बिजली और टेली कम्युनिकेशन जैसे बुनियादी ढांचों में तोसी हुई है जो दूर दराज के इलाकों को शहरी मराकज़ से जोड़ रहे हैं। गांव वाले अक्सर करीबी कस्बों और शहरों में सफ़र के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मिनी बस या मुश्तरका टैक्सियों पर ही इंहिसार करते हैं। घरों में अक्सर लकड़ी के शटर, बालकनियाँ और सहन होते हैं जो गर्मी के गर्म महीनों में साया और वेंटिलेशन फराहम करते हैं। कुछ देहातों में तारीखी मकामात हैं जैसे कि मसाजिद, गिरजाघर, चश्मे और पुल जो उस्मानी, बाज़ंतीनी या रोमन दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। दुनिया के बहुत से मुल्कों में उन वीरान जगहों पर जहाँ पर कोई ना रहता हो वहाँ पर बहुत सी मफूकुल फितरत कहानियाँ हुई होती हैं, या तो उन लोगों ने उन मफूकुल फितरत चीज़ों को देखा होता है या फिर अपने बड़ों से उन कहानियों को बार बार सुना होता है। तो उसी में से बहुत सी कहानियाँ तुर्की के गांवों में भी मशहूर हैं। तो वीडियो का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है, थ्रिल के लिए तैयार हो जाएं। तुर्की की लोक दास्तानों में बहुत सी मशहूर इंतकामी रूहों की कहानियों में से एक रेड स्कार्फ में लड़की की कहानी है। रवायत है कि बहुत पहले
पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में लैला नाम की एक खूबसूरत नौजवान औरत रहती थी। इसे मेहमत नामी एक खूबसूरत नौजवान चढ़ावे से गहरी मोहब्बत थी। ताहम इनकी खुशी इस वक्त कलील रही जब लैला के घर वालों ने इसकी मर्जी के खिलाफ एक अमीर सौदागर से इसकी शादी का बंदोबस्त किया। दिल शिकस्ता और मायूस लैला ने मेहमत के साथ भाग गई और वो जंगल में एक दूर दराज कॉटेज में भाग कर रहने लगे। थोड़ी देर के लिए वो खुशी से भरे खलवत में रहे, लेकिन इनकी खुशी इस वक्त टूट गई जब मेहमत शदीद बीमार होकर चल बसा। गम और तन्हाई में मुब्तला लैला जंगल में घूमती रही। इसका सुर्ख अस्काफ इसके गले में मजबूती से लिपटा हुआ था। इसने मेहमत की मौत को कबूल करने से भी इनकार कर दिया और इसे दोबारा जिंदा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों और दवाइयों की तलाश में बहुत से दिन गुजारने लगी। जैसे जैसे साल गुजरते गए लैला का दिमाग जुनून में डूब गया और उसने भी अपनी जान ले ली। लेकिन उसकी रूह बेचैन जंगल में घूमने लगी और गांव वाले एक भूत वाली शख्सियत के बारे में सरगोशियां करने लगे जो सुर्ख अस्काफ में लिपटी हुई थी, जो रात के वक्त जंगल में अपनी खोई हुई मोहब्बत के लिए मातम करती थी। जिन लोगों ने लैला के भूत का सामना किया वो जल्द ही बीमारी या बदकिस्मती से दो चार होने का दावा करते थे, जिससे बहुत से लोगों को यकीन होता है कि वो एक इंतकामी रूह बन गई है। आज तक जंगल की गहराइयों में जाने वाले मुसाफिर दरख्तों में से गूंजने वाली औरत की मध्यम आवाज सुनते हैं। इसके कुर्ब की चीखें इंतकामी जज्बे की अलमनाक कहानियां की याद दिलाती हैं। यूरोपीय लोक दास्तानों में सर के बगैर घोड़े वाले की मशहूर कहानी की तरह तुर्की की लोक दास्तानों में भी एक बगैर सर के घोड़े वाले की मशहूर कहानी है जो रात के वक्त इलाकों में घूमता है, मुसाफिरों और मुकामी लोगों को यकसा तौर पर खौफजदा करता है। कहा जाता है कि इस घोड़सवार को देखना बदकिस्मती या मौत भी लाता है। तो ये तो थी तुर्की के गांव की जिंदगी, लेकिन अगर आप अमेरिका के गांव की जिंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। न्यूजीलैंड के गांव की जिंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें।